بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معمار ٹرسٹ کی خدمات ایک نظر میں۔ تھر صحرائے زندگی۔ جہاں آسمان سے سورج آگ برساتا ہے، جہاں ریت کا فرش بھی آگ اگلتا ہے، جہاں زندگی بھی جینے کو ترستی ہے، جہاں غربت و افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جہاں بھوک، پیاس اور بیماری نے زندگی اجیرن کر رکھی ہے، جہاں بے روزگاری ہے، تعلیم کا فقدان ہے، علاج معالجے کی سہولتیں ناپید ہیں، جہاں بنیادی انسانی ضروریات میں سب سے اہم ضرورت پانی کا حصول پہلی ترجیح قرار پاتا ہے۔ تھر کے باسی صدیوں سے ان مصائب کو جھیلتے آ رہے ہیں، لیکن ان کا حوصلہ بلند اور ہمت جوان ہے۔ انہوں نے انہی مسائل میں آنکھیں کھولیں اور پھر انہی مسائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹ گئے۔ صدیوں سے رائج روایتی طریقہ اختیار کیا، اپنی محنت اور مشقت کے ساتھ ساتھ اپنے مویشیوں کا زور بھی آزمایا۔ اس روایتی طریقے میں صبر آزما مرحلوں کے بعد پانی میسر آ تو جاتا ہے، لیکن کیا وہ صاف اور پینے کے لائق ہوتا ہے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے، اس لیے کہ لمبے رسوں میں لپٹی ریت، جانوروں کا فضلہ اور پانی کا ذخیرہ اور استعمال، جانوروں اور انسانوں کے یکجا استعمال سے پانی میں شامل ہونے والی کثافتیں پانی کے انسانی استعمال کے لیے نقصان دہ ہونے کے لیے کافی ہیں۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ میلوں دور سے پانی لانے کی جو مشقت ہے، وہ ایک خاندان کے اہم افراد کی بڑی تعداد کی لازمی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ماں ہو یا باپ، بہن ہو یا بھائی۔ میلوں کی مسافت اور گرمی کی شدت میں اکثر ننگے پاؤں اس مشقت کو جھیلنے پر مجبور ہیں۔ اس منظر نامے میں انسانیت کا دکھ درد رکھنے والے انسانوں اور اداروں نے اپنے تئیں تھر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں کی، جو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور سراہے جانے کے قابل ہیں، لیکن مسائل اور مشکلات کا سلسلہ اتنا گمبھیر ہے کہ سکھ کا سانس خال خال ہی دکھائی دیتا ہے۔ دکھ، درد اور درد مندی کے ساتھ کی جانے والی کاوشوں کے تانے بانے میں معمار ٹرسٹ کا صاف ستھرا اور سیدھا سادہ کردار منظر عام پر آتا ہے۔ جید اور مستند علماء کرام نے خدمت خلق کو نام و نمود اور شخصی تشہیر کا ذریعہ بنانے کی بجائے عبادت کا درجہ دے کر تھر میں معمار ٹرسٹ کی سرگرمیوں کو فعال کیا۔ معمار ٹرسٹ نے تھری عوام تک براہ راست اپنے گراس روٹ نیٹ ورک کی بدولت سیدھے سادے طریقہ کار اور کم سے کم بلکہ نہ ہونے کے برابر اوور ہیڈ مصارف کے ذریعے رسائی حاصل کی، اور اپنے معاونین اور مقامی افراد کی براہ راست عملی شرکت کے باعث انتہائی کم لاگت پر ان تک سہولیات پہنچانے کے لیے کوششوں میں مصروف ہے۔ فراہمی آب یعنی واٹر سپلائی کو
पहली तरजीह करार देकर मरहलावार काम का आगाज किया। पहले मरहले में उन इलाकों में काम शुरू किया गया जहां बिजली की सहूलत तो मौजूद थी मगर लोग जानवरों के जरिए पानी निकाला करते थे। ट्रस्ट ने यहाँ मोटर और टैंकी का इंतजाम किया और कुओं की सफाई कराई। जहाँ जरूरत थी कुओं को मजीद गहरा किया गया। दूसरे मरहले में ट्रस्ट ने उन इलाकों में कुएं खुदवाए जहाँ के रिहायशी 8-10 किलोमीटर दूर से अपने जानवरों और अपने सरों पर पानी लाद कर लाया करते थे। तीसरे मरहले में मेमार ट्रस्ट ने उन इलाकों पर तवज्जो दी जहाँ कुएं तो मौजूद थे मगर बिजली नहीं थी। आबादी काफी ज्यादा थी और लोगों को जानवरों के जरिए पानी निकालने में काफी दुश्वारी हुई थी। जो पानी मिलता उनकी जरूरत से कहीं कम होता। इस मरहले में अल्हम्दुलिल्लाह शमसी तवानाई को इस्तेमाल करते हुए सोलर सिस्टम के जरिए कुओं पर मोटरें लगाकर लोगों को पानी फराहम किया गया। इन तमाम मराहिल में कुएं के करीब जानवर और परिंदों के लिए पानी का इंतजाम अलग हौज बनाकर किया गया है। केसराड़ बस्ती, डातू की बस्ती, करीमदाद तड़, बिजलानी, शेर मोहम्मद बस्ती, जुम्मा अलानी बस्ती, कीतारी, कीतार, मिठड़ियो, अछड़ो थर, खुड्डी, करोड़ो, बच्चू का तड़ समेत कुल 78 बस्तियों के 2 लाख अफराद के लिए पानी का इंतजाम किया गया। इस सिलसिले में 46 टैंक्स तामीर किए गए और 61 मोटरें नस्ब की गईं। मजीद ये कि 7 शमसी पैनल लगाए गए और 7 कुओं के थल्ले तामीर करने के साथ साथ 4 कुएं भी खुदवाए गए। फराहमी आब के साथ साथ थर के देही आवाम के लिए ये खिदमात भी मेमार ट्रस्ट की जानिब से पेश की गईं। सोलर लाइट्स की फराहमी, 150 खानदानों को सोलर लाइट्स फराहम की गई। राशन की तकसीम प्रोग्राम, मेमार ट्रस्ट की जानिब से जिला मिट्टी की 26 बस्तियों में राशन तकसीम किया गया और दीगर बस्तियों पर मुश्तमिल 1500 खानदानों तक खुराक के पैकेजेस बहम पहुंचाए गए। नकदी की तकसीम, 30 बस्तियों के 1200 मुस्तहिक अफराद में नकदी तकसीम की गई। गर्म लिबास और चप्पलों की तकसीम, इस प्रोग्राम के तहत मेमार ट्रस्ट ने 50 बस्तियों के 7000 अफराद में गर्म लिबास और चप्पलें तकसीम की। वाटर सप्लाई सर्विसेज पैकेजेस, थर में सोलर पैनल की फराहमी और तनसीब की तखमीनी लागत 2,99,435 रुपए है। सतह जमीन से 5 फीट बुलंद ओवरहेड टैंक की तामीरी लागत 60,815 रुपए, जिसमें मोटर की तनसीब भी शामिल है। बिजली हो तो ये टैंक 30 मिनट में भर जाता है और अगर सोलर पैनल के जरिए मोटर चलाई जाए तो 40 मिनट में ये भर जाता है। जानवरों के लिए हौज की तामीरी लागत 13,710 रुपए है। एक वक्त में 50 छोटे या 20 बड़े जानवर पानी पी सकते हैं। यह हौज सिर्फ 20 मिनट में भर जाता है। यूसेज टैंक, जिसे आमतौर पर थल्ला कहा जाता है, की तामीरी लागत 30,200 रुपए है। नए कुएं की खुदाई की तखमीनी लागत 3,70,000 रुपए है। आइए अब सुनते हैं मकामी बाशिंदों की बातें। अल्लाह का शुक्र है कि मेमार ट्रस्ट वालों ने हमें ये पानी का प्रोजेक्ट लगा के दिया। गरीब लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। थर में बहुत ही पानी की ज़रूरत होती है लोगों को। पानी एक अहम बुनियादी ज़रूरत है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव की आबादी तकरीबन 12 से 15,000 है, उसमें और भी ये काम किए जाएं तो बहुत अच्छा होगा। शमसी पे मोटर लग जाए तो पानी साफ सुथरा आएगा और मिनरल वाटर की तरह, तो साफ सुथरा लोग पानी पिएंगे, उसमें बीमारियां खत्म हो जाएंगी। एक नंबर। दूसरे नंबर पे कि लोग फारिग हो जाएंगे, घर तक पानी आराम से लेने जरिए पानी पहुंचेगा। 2 आदमी फारिग हो जाएंगे, वो जाकर रोजगार लगेंगे, कमाएंगे, तो फी आदमी कम से कम 5,000 रुपया अगर महीना कमाएगा, 10,000 फी घर के अंदर आ सकता है। तो एक मेमार ट्रस्ट वाहिद है को 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के अंदर, इस इलाके के अंदर काम किया है। मेमार ट्रस्ट वालों को बड़ी मेहरबानी, जो इधर हमारे 15,000 आबादी है उसमें एक कुएं पर शमसी पेड़ लगा दिए, उनमें पानी निकालने का हमारे लिए बहुत आसान हो गया। पहले में इधर खोतों ऊँटों से पानी निकालता था, बड़ी मुश्किलात थी। हम 300 साल से इधर बैठे हुए हैं, कभी ऐसा पानी नहीं मिला जो अभी इधर हमारे सुख हो गया है। मेमार ट्रस्ट की खिदमात कौमी सतह पर जानी पहचानी है। गरीबों, नादारों, यतीमों, बेवाओं और मुसीबत ज़दा बहनों और भाइयों की खबरगिरी के हर मौके पर मेमार ट्रस्ट ने अपने मुआविनीन के पुरखुलूस ईसार को बेलौस खिदमात के रूप में पेश किया। खा रमज़ान पैकेज हो, ईद पैकेज हो, ईद कुर्बा पर मुस्तहिकीन के लिए कुर्बानी प्रोजेक्ट हो, सैलाब ज़दगान, ज़लज़ला ज़दगान या IDPs का मसला हो, मेमार ट्रस्ट उलमाए कराम की निगरानी में आफत ज़दा इंसानों की खिदमत और इमदाद को इबादत समझकर अपना फरीज़ा अदा करता है और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से और नुसरत के साथ आइंदा भी करता रहेगा।
मसाइब व आलाम और सख्तियों में मुसीबत ज़दा इंसानों की खिदमत और इमदाद पैगम्बराना औसाफ में से है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के वो अल्फाज उन औसाफ का बयान है जो उन्होंने पैगम्बर इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त कहे थे जब आप पर वही नाजिल हुई, तो वही के बोझ और अजमत शान की वजह से आप खौफजदा हो गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको तसल्ली देते हुए फरमाया था, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं फरमाएंगे, क्योंकि आप आजिज़ों और मजबूरों का बोझ उठाते हैं, नादारों को कमाई के काबिल बनाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और कुदरती आफात में लोगों की मदद करते हैं। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मशअल राह है। इसी राह पर बढ़ते कदम हमें कामरानी की उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जो मकसूद हयात है। हदीस मुबारका, जो शख्स किसी मोमिन से दुनिया की किसी मुसीबत को ज़ाइल करता है, अल्लाह ताला उससे क़यामत के दिन की मुसीबत को ज़ाइल करता है। और जो शख्स किसी मुश्किल में फंसे हुए को सहूलत देता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में सहूलत अता फरमाता है। मिशकात